the Final Frontier Foundation, Youth Camp Ministry in Pakistan ***, is a life-changing initiative that serves as a beacon of hope, empowerment, and spiritual growth for young people. In a country where many face challenges related to poverty, lack of educational opportunities, and social limitations, the Youth Camp Ministry offers an environment where young minds are nurtured, lives are transformed, and faith is strengthened. At the heart of the Youth Camp Ministry is a mission to equip and inspire young people with the values of Christ-centered leadership, service, and resilience. Through dynamic programs, the ministry provides a safe space for participants to grow spiritually, emotionally, and intellectually. These camps create an atmosphere of love, acceptance, and guidance that helps young attendees develop self-confidence, build meaningful relationships, and discover their potential. One of the key components of the camp experience is the focus on biblical teaching and discipleship. Campers are encouraged to deepen their relationship with God through daily Bible studies, worship sessions, and personal reflection. By learning and discussing biblical principles, young people are empowered to apply these teachings in their daily lives, fostering a strong moral foundation and a sense of purpose. In addition to spiritual growth, the ministry also places a strong emphasis on personal development. Camp programs are designed to foster leadership skills, teamwork, and problem-solving abilities. Activities such as group discussions, leadership training workshops, and outdoor challenges provide opportunities for participants to step out of their comfort zones. Attendees are taught the value of giving back to their communities, serving others, and being agents of positive change. Through outreach programs and service projects, young people learn to see the world beyond themselves, developing empathy and a heart for service. This focus on community engagement instills a strong sense of purpose, encouraging participants to contribute meaningfully to society. Once they leave the camp, cultural diversity and inclusivity are also fundamental aspects of the camp. Pakistan is a nation rich in cultural heritage and traditions, and the Youth Camp Ministry seeks to promote unity and understanding among participants from different backgrounds. कहते हैं थैंक यू सर एंडी कहना थी थोड़ा ऊंची बोले तो क्लैपिंग कर रही है सर तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमारे इस कैंप को दूसरी या तीसरी दफा ज्वाइन कर रहे हैं। तो सब जानते हैं कि हमारा ये कैंप जो है टोटली मिलिट्रिकल कैंप होता है और इसमें हर तरह की सेकुलर एक्टिविटीज से हम गुरेज करते हैं। तो आई होप कि आप सारे हमारे साथ मिलकर अच्छे काम में हमारी मदद करेंगे और हर तरह के माहौल को, डिसिप्लिन को कायम रखने में हमारा साथ देंगे। आमीन। हाथ उठा के बताएं, शपथ दे मुझे। तो एग्री मेरे साथ? तो बहुत
कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मनो, कहो कि यीशु जिंदा है, तालियां बजाओ मनो। की फिक्र नहीं होती, वो दूसरों पर उसका एहसार होता है, अपने पेरेंट्स पर। हमारा टेस्ट होना है तो हम उसकी तैयारी करते हैं कि हमें पता है कि हमारा इम्तिहान है, लेकिन जो आजमाइश है वो हमें पता नहीं है कि जब मर्जी आ जाए। तो इसलिए लिखा कि जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहराया तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। I would like to introduce myself. My name is Shahriyar and I am graduated from Baptist Institute of Bible Teaching, Lahore. And my Bible teacher is Pastor Shoka Siddiq. He is sitting in front of all of you. So, after to complete my graduation, my God given me this great opportunity to serve the Lord in front all of you and also in whole world. So देने वाली है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मोहब्बत है बहुत ज़्यादा लोगों से, तो हमारे अंदर भी ये बात है, हम बहुत दिखावा करते हैं। जैसे भी कुछ लोग कल ऊपर गए हैं सैर करने के लिए, तो क्यों ऊपर से ऊपर जा रहे थे हम? किस बात के लिए? एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को दिखाने के लिए जी। स्टार्ट करदा खुदावंद यीशु मसीह, तुम क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक या व्हाट यू थिंक। कहन ते बुजुर्ग कौम ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ। हफ्ता खुदावंद मैं तेरे कलाम को सीखने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। हम सब अपने अपने दिलों में दुआ करें। ये रेड ब्लू है ना? ओ वाओ, एक ब्लू कलर का ब्लू। ये ब्लू नहीं है, ये रेड है और इसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं है। ये ब्लू है? नहीं, ये ना ही ब्लू है ना ही ग्रीन है। ओ, ये तो ग्रीन कलर है। नो, नहीं, ये ब्लू ना? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नजर रेड आ रहा है तो ये रेड है और दूर से तो ये पर्पल नजर आ रहा है। और मुकद्दस को लेकर, खुदा की अलूहियत को लेकर हम सब कंफ्यूज हैं और नहीं समझ पा रहे कि खुदा क्या है, मसीह कौन है और आखिर हकीकत है क्या। तो इसे जानने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है कि हम इस बाइबल को पढ़ें, क्योंकि इसमें खुदा की अलूहियत के बारे में सारा का सारा बयान किया गया और एक सीक्वेंस के साथ तरतीब से बयान किया गया। तो जरूरत इस बात की है कि आप इस बाइबल को पढ़ें और इस पढ़ें नहीं, इसे
समझें और इसे सीखें। अगर नहीं समझ आ रही तो एक ऐसा उस्ताद चुने जो आपके नजरिए में बेहतर है और आपको सिखाने में, खुदा की अलूहियत को सिखाने में आपकी मदद कर सकता है। तो प्लीज इधर उधर बातों में, किसी की बातों में ना आए। जो हकीकत है उसे खुद जाने और इसे पढ़ें ताकि आपको हकीकत से पता चले, और जो हकीकत है जो टल नहीं सकती उसका आप उस पर कायम रहने वाले बने। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं आप दोनों के लिए कुछ तोहफे लेके आऊँ। समरा, ये आपके लिए और थैंक यू जीसस। इसमें क्या है? खोल के देखो, यकीनन ये आप दोनों को पसंद आएगा। वाओ समरा, पहले आप खोल के देखो। वाओ, छोटा कैन। थैंक यू जीसस, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। जॉन, अब आप खोलो। वाओ जीसस, 1 लीटर की कोक। थैंक्स जीसस। आओ समरा, हम दूसरों को दिखाते हैं। हे समरा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं बस ये सोच रही थी कि आपने सबको इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रखे हैं। बस मुझे एक छोटा सा कैन। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपने जॉन को इतना बड़ा गिफ्ट दिया, वो ज़्यादा खुश भी है, और मुझे एक छोटा सा कैन। ओके, लेकिन वो तो सिर्फ जॉन के लिए था। लेकिन मुझे भी वैसा चाहिए। आप जाएं और मेरे लिए भी वैसा लेके आए। ठीक है। हे समरा, ये देखो, मुझे लीटर की कॉक मिली। ये किसने दी? ये मुझे जीसस ने दी है। आपको पता है, मैं भी ऐसी कॉक चाहती थी, लेकिन मुझे एक छोटा सा कैन कॉक मिला। Hey guys, ये देखो मुझे क्या मिला, और ये मुझे जीसस ने दिया है। वाओ! ओह, हेलो जीसस, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। जीसस, ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? क्या? आप मुझे कुछ बेहतर क्यों नहीं ला दे सकते? लेकिन मैं तो आप सबके हिसाब से आपको गिफ्ट दी हूँ। लेकिन मुझे भी वैसा गिफ्ट चाहिए था जैसे उनको मिला है। देखो, जब मैंने तुम्हें कोक का छोटा कैन दिया तब तुम कितनी खुश थी, लेकिन मैंने जब जॉन का गिफ्ट दिया तो तब तुम्हें बुरा क्यों लगा? मुझे नहीं पता, बस रहने दे। बयान नहीं कर सकती मैं कितना आज़ाद फील कर रही हूँ। थैंक यू जीसस, आपने मेरा सारा बोझ उठा लिया, और जीसस आपने मेरा सारा। ये तुम क्या कर रही हो? रुको, ये मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ ये मेरे पास दूंगा, ये कचरा, ये सारा कचरा ये तुम मुझे दे दो, मैं इसे क्लीन कर दूंगा। जीसस, बस ये मेरे पास रहने दे, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। तुम ये कचरा मुझे दे दो। नहीं जीसस, ये ठीक नहीं। तुम ये कचरा मुझे दे दो, मैं खुद क्लीन करूंगा। ये ठीक नहीं। मैं तुम्हें साथ देखना चाहता हूँ, तुम ये कचरा मुझे दे दो। तुम देख नहीं रही कि तुम क्या कर रही हो? मैं हर मर्तबा तुम्हारा बोझ उठाने की कोशिश करता हूँ, मैं हर मर्तबा तुम्हारा कचरा उठाने की कोशिश करता हूँ, और तुम फिर भी उसमें से कुछ रख लेती हो जिसकी पास भर्ती हो गए ना कि सर हमें लेकर जाए, हम जाना चाहते हैं। कुछ लोगों को मैंने रात, आखिरी रात जो रात 12 बजे का टाइम था, अगले दिन हमने ट्रैवल शुरू करना, मैं रात को लिस्ट से चेंज कर रहा हूँ। आप सबको कुछ पता नहीं कि
जो कि हमें पता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और भी दुनिया में हो नहीं सकता। क्या ख्याल है? तो था मालदार था और बहुत ज्यादा ये खुदा से प्यार भी करता था। क्योंकि ना आप लोग सारी, अगर कुछ सवाल हो तो आप प्लीज मुझे रोक लीजिएगा और पूछ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने वो जुबानों को समझा और खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुना, और वो बयान क्या से गदक हो जाती है और जंगल में है तो बताएगा अमेजिंग चीज क्या है। मुझे बोलने का यानी तौर तरीका नहीं था और अपनी ज़िंदगी स्पेंड करने का तरीका भी नहीं था। जब भी बोलता यानी तो लाजमी गाली गलौज यानी मैं बहुत करता हूँ। मैं जानता हूँ ये बात कि आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस यूथ कैंप में आए हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम है, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पर इस यूथ कैंप में आ सका। मैं पहले भी अपनी टेस्टिमनी बहुत सी जगहों पर शेयर कर चुका हूँ, जैसे कि मैं अपने चर्च पर अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकूँ, अपनी क्लास में मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की, अपने घर में मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की है। तो आज मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए ना आप सबके सामने खड़े होकर कि ये मेरे लिए आज ना बहुत ही आमीन। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि मैं बताऊं कि खुदा यीशु मसीह ने मेरी ज़िंदगी को कैसे तब्दील किया और कैसे खुदा ने मुझे एक नई शनाख्त बख्शी। मेरा नाम पासा अकरम है।